हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स 2 का 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का एक ऐसा चैप्टर सीखने वाले हैं विच इज़ वेरी स्कोरिंग और बहुत सारे स्टूडेंट का ये फेवरेट होता है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। दिस इज द 4th चैप्टर इन मैथ्स 2 जिसमें सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट है। वेरी कॉम्पैक्ट चैप्टर। 4.1 इज अबाउट construction of similar triangles और 4.2 is about construction of tangents। ये वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो 4.1 एक्सरसाइज में ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल के हमें पढ़ने हैं। तो वो 2 टाइप में से ये कौन सा टाइप है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव अ वेरी बेसिक रूल इज दोनों ट्रायंगल के नाम ध्यान से पढ़ो। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। एक बात है, ये 2 ट्रायंगल में एक भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है। ABC is different, LMN is different। So दोनों ट्रायंगल के तीनों अल्फाबेट अलग अलग है। It means इसका जो कंस्ट्रक्शन बनेगा उसमें ABC ट्रायंगल अलग बनेगा, LMN ट्रायंगल अलग बनेगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस? यू जस्ट गॉट द पॉइंट कि मुझे कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है। पहले प्रोसीजर देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। नाउ इन दिस केस द 2 triangles are similar. It means we will first write down the given thing. Triangle ABC, similar triangle LMN. Therefore, उनके 1-to-1 corresponding side के रेशो भी सेम होते हैं। AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN। AB फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, उसके साथ रेशो में बैठेगा फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में है LN। AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN। रीजन क्या लिखेंगे? CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मुझे दिया हुआ है। Now one thing is very clear, तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल के सारे डायमेंशंस दिए हुए रहेंगे। Now I am having ट्रायंगल ABC के सारे डायमेंशंस तीनों साइड दिए हुए हैं। When I am having all 3 sides given, I can easily construct triangle ABC। Side AB, BC and AC, all 3 sides are given। Now my task is, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है? I want to calculate all the sides of triangle LMN so that I can solve both the triangles। Now out of these 3, रेशो दिया हुआ है मुझे BC upon MN का which is 5:4। तो अगर BC upon MN 5/4 है तो obviously ये दोनों के लिए भी वही सेम रेशो हो जाएगा। Therefore I can say AB upon LM is equal to BC upon MN which is equal to AC upon LN which is equal to 5/4। ये हो गई थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन। अभी तीनों साइड्स मुझे दिए हुए हैं AB, BC और AC, और मेरा टास्क है टू फाइंड LM, MN एंड LN। सो आई विल कंपेयर ईच रेशो with 5/4। I will cross multiply and simply I will get the answers। Therefore AB is 5.5 upon, we will write little on the left hand side। Therefore 5.5 upon LM I don't know which is equal to 5/4। If I cross multiply I will get LM is equal to 5.5 into 4 upon 5। Therefore LM is equal to 4.4 centimeter। I got first segment by just using, देखो सब इक्वल है ना,
So I can use the first ratio with 5/4 to get the first segment LM, that is 4.4 centimeter. Now we will use second ratio with 5/4. BC, that is 6 upon mm is equal to 5/4. Therefore mn is equal to 6 into 4 upon 5. Therefore mn is equal to 4.8 centimeter. You should be good with the calculations. Calculation mistake ये बहुत बड़ा हार्म करता है हमें पेपर में. So you should be very careful in calculations. And last one we have to calculate ln. AC is 4.5 centimeter. 4.5 upon ln is equal to 5/4. Therefore cross multiplication ln is 4.5 into 4 upon 5. Therefore ln is equal to 3.6 centimeter. कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे 50% पार्ट खत्म हो गया. I got lm, mn and ln. All three sides मुझे lmn के भी मिल गए. So now calculation part is over and now we are remaining with just a construction. So take a scale, pencil and compass and let's draw the two triangles. Now if I am drawing ABC, I will select the base. Let's say जो बड़ा है उसको base ले लेते हैं. So 6 centimeter I will select as a base BC. So I will draw a line BC 6 centimeters. Take a compass. Point A is 5.5 centimeter from the B. So take a 5.5 centimeter in the compass. Keep it on a B and make an arc. Now point A is 4.5 centimeter from C. So take 4.5 centimeter in the compass and cut that arc. Where both arcs will cut, that is your point A. Join those. Don't forget to write the dimensions, otherwise you will lose the mark. AB is 5.5 centimeter, while AC is 4.5 centimeter. We got the first triangle. Now our task is to get LMN. Now we have all three sides of LMN. LN 4.5, MN 4.8 and LN 3.6. Let's construct. अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रहे, अगर मैंने बेस BC लिया है तो you should take BC के साथ जो रेशो है MN, that as a base, तो वो ट्रायंगल दोनों दिखने में they will look proportionate. It is not hard that taking other side as a base, but follow the procedure. अगर यहाँ पे BC हमने दिया है base, then it's better. The diagram अच्छे दिखेंगे दोनों. We will take MN as the base, that is 4.8 centimeter. Now, point L is 4.4 centimeter away from M. Take 4.4 centimeter in compass and make an arc. Point L is 3.6 centimeter from N. So take a 3.6 centimeter in a compass and cut that arc. This is something you will get point L. Join them. Don't forget to show the dimensions. LM 4.4 centimeter and LN 3.6 centimeter. तो बन गए हमारे दोनों ट्रायंगल. This is all about the solution. कितना सिंपल है देखो. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. आइडेंटिफाई कैसे किया, अभी फिर से पूरी प्रोसीजर समझ लो. आइडेंटिफाई कैसे किया, दोनों ट्रायंगल्स के नाम पढ़े, एक भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है. Here it is ABC, here it is LMN. It clearly indicates two triangles are totally different triangles, and my task is to first calculate dimensions of the second triangle and to construct both triangles afterwards. So what I did, as both triangles are similar, मैंने उन दोनों ट्रायंगल के corresponding ratios साइड के ले लिए, corresponding sides of similar triangle. उसके बाद एक रेशो दिया हुआ है, वही रेशो मैंने बाकी साइड के साथ कंपेयर किया टू गेट थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल LMN. व्हाट इफ अगर मुझे एंगल दिया है,
अगर मुझे कोई एंगल दिया है, मान लो यहाँ पे AB BC और एंगल B दिया हुआ है, यू मस्ट बी नोइंग दैट अगर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो उसके सारे एंगल्स 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मान लो AB 5.5 BC 6 और एंगल B इज 50 डिग्रीज, ऐसा अगर होता तो यहाँ पे B से करस्पॉन्डेंस है M, मिडिल पोजीशन M, सो यहाँ पे M भी 50 डिग्रीज होता। सो अगर ये साइड नहीं दिया हुआ है 6 centimeter 5.5 and I would have used protractor to get this angle as 50 degree. Even I would have used protractor to get angle M as 50 degrees. So when you have sides, you will use the ratio to find all the sides. When you have angle, there is no need to write any calculations for that. You can just show that they are congruent and you can use it as a same angle. Exam में डायमेंशंस नहीं लिखे तो मार्क्स जा सकते हैं, अल्फाबेट्स नहीं लिखे तो मार्क्स जा सकते हैं. सो इट्स बेटर यू शुड फोकस ऑन राइटिंग एवरीथिंग नीटली. Let's have a look on second method of triangle, which is very important compared to this. जो एग्जाम में 95% वो सेकेंड मेथड आने की चांसेस है, इसके आने के चांसेस आर ओनली 5%. Now students check this sum. This is second question from 4.1. Now in this case उन्होंने क्या बोला है, PQ are similar to LTR. Read the names of the triangle very carefully. You will find alphabet R is common. It indicates अगर दोनों ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो दोनों में एक कनेक्टिविटी है, दैट इज पॉइंट R. इसका मतलब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है. तो ये मेथोडोलॉजी कैसे सॉल्व करनी है व्हेन वी हैव कॉमन अल्फाबेट. तो एज यूजुअल एक ट्रायंगल के सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, PQ, QR and PR, all three sides are given enough information to draw a triangle and they have given one ratio PQ upon LT. Now how to proceed? Number one, जो कॉमन अल्फाबेट है वो बेस में आना चाहिए. तो R is the common alphabet between two triangles. So PQ, QR और PR में से PQ का पॉसिबिलिटी कंप्लीटली जीरो हो जाता है टू बिकम बेस ऑफ द ट्रायंगल. PQ बेस बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि कॉमन अल्फाबेट है R जो इसमें नहीं है. तो अभी कौन सा बेस ले? शुड आई टेक QR और शुड आई टेक PR? दोनों में से उसको बेस सिलेक्ट करो जो रेशो में प्रेजेंट है. नाउ यू विल से सर रेशो में तो R नहीं है. तो when there is no ratio में कॉमन अल्फाबेट अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको लाएंगे इन एनालिसिस. कैसे? राइट, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR. देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे साइड्स के रेशो सेम हो जाते हैं. PQ अपॉन LT इज इक्वल टू QR upon TR is equal to PR upon LR. रीजन लिखेंगे corresponding side of similar triangle. ओके, अभी PQ upon LT 3/4 है, but PQ upon LT is equal to 3/4. This is all given information. तुम लोग ब्रैकेट में given लिख सकते हो, but in construction These things are least important. So construction कैसे किया है एग्जामिनर वो ज्यादा फोकस करेगा. So PQ upon LT 3/4 है. So either you can select QR upon TR as 3/4 or you can select PR upon LR as 3/4. Let I select QR upon TR as 3/4. Therefore QR upon TR is equal to 3/4. Now I will repeat the logic again. Step number 1, in triangle name I found alphabet R is common. So मुझे ये पता चल गया कि मुझे मेथड कौन सी यूज करनी है. स्टेप नंबर 2, दिए हुए डायमेंशन में बेस किसको सिलेक्ट करें. तो PQ 4.2, QR 5.4 एंड PR 4.8 जो रेशो में प्रेजेंट है.
क्यू आर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो रेशियो में प्रेजेंट है उसको मैं बेस बनाऊंगा. यू कैन इवन टेक पी आर, बस अल्फाबेट जिसमें कॉमन है वो बेस में आना चाहिए. सो क्यू आर अपॉन टी आर, सो आई विल सिलेक्ट क्यू आर एज बेस. अभी यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने एक रेशियो दिखाया जिसमें अल्फाबेट कॉमन है. नाउ यू पीपल शुड फोकस ऑन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. अभी ध्यान से देखो और सुनो. क्यू आर इज द बेस. क्यू आर इज 5.4. This is R and this is Q, which is 5.4 centimeter. I have extended the line. Now the question is, why I have extended the line when QR is 5.4 centimeter? QR 5.4 है, but QR ये जो साइड है वो थर्ड पार्ट पे है. इसका मतलब अगर PQR 3 टाइम्स है तो जो सेकेंड ट्राइंगल है LTR वो 4 टाइम्स है. इट मीन्स PQR ट्राइंगल छोटा आएगा, LTR ट्राइंगल उससे बड़ा आएगा, बिकॉज रेशो में LTR का पार्ट जाता है. तो मुझे ये समझ में आ गया कि PQR ये छोटा ट्राइंगल है, LTR इज द बिगर ट्राइंगल. तो आई हैव डन एन अरेंजमेंट. PRQ बेस बनाने के बाद लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया, बिकॉज न्यू ट्राइंगल विल बी ग्रेटर. नाउ बेसिक जो PQR के डायमेंशंस दिए हैं वो बेसिक से डायग्राम निकाल लो. पहला ट्राइंगल PQR तो बन जाएगा. सो टेक अ कंपास. पॉइंट P is 4.2 centimeter from Q. So take a 4.2 centimeter in the compass, make an arc. Point P is 4.8 centimeter from R. Take 4.8 centimeter in the compass, keep it on R and make an arc. This is P. Join PQ and join PR. Now why I have extended the line? You know the reason. LTR बड़ा ट्रायंगल आएगा तो उसके लिए अगली जगह मैंने रखी है. Now from the required two triangles, PQR तो visible हो गया. अभी अगला काम करना है LTR के लिए, जिसमें R is the common alphabet. Now what I have to do? R is the common alphabet. Purposely मैंने उसको left hand side में रखा है. Next procedure is very important. Understand it very correctly. एक inclined line बनाएंगे from point R. ये inclined line should be something around 40 to 50 degrees, 45 degrees. ज़्यादा लाइन से बेस से दूर भी मत लेके जाओ, ज़्यादा बेस के नज़दीक भी नहीं चाहिए. Should be with the adequate distance 40 to 50 degrees के बीच में बनाओ. अभी ये लाइन के ऊपर कंपास से I will make equidistant part. कितने? 4 पार्ट बनाऊंगा. क्यों? क्योंकि रेशो में we have 4 parts. So we have 4 parts in the ratio. So equidistant लेंगे. 1 सेंटीमीटर लोगे तो बहुत छोटा दिखेगा शायद. So take 2 और थोड़ा सा ज्यादा सेंटीमीटर लो. डिपेंड पेपर की साइज कितनी है वो भी चेक करो. 1, 2, 3 and 4. So let's say I have made 4 parts on this line. I will name it as R1, R2, R3 and R4. अभी क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट. ये स्टेप समझ में आ गई. नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट Q को मैं R3 के साथ ज्वाइन करूंगा. इट मींस पॉइंट Q को मैं थर्ड पार्ट से ज्वाइन करूंगा. क्यों? क्योंकि PQ दैट इज QR इसका रेशियो है थर्ड पार्ट पे. दैट मींस ये जो पॉइंट Q है, दिस पॉइंट Q इज बीइंग रेफर्ड एट पार्ट नंबर 3. सो Q and R3, these 2 points I will join by the dotted line. Once I join these 2 points, अभी काम आएगा कंपास का. अभी ध्यान से सुनो. Take a compass, keep it on R3. Take adequate distance and
कट दैट एंगल. क्या करना है? टेक अ कंपास, टेक एडिक्वेट डिस्टेंस इन द कंपास and cut the entire angle like this. Okay, we got such arc. Now without changing the distance, ध्यान से सुनो, without changing the distance, keep the compass on R4. Why R4? Because new triangle LTR belongs to fourth part. That's why keeping the compass on R4 make an arc. It may look like this. Now the next step, in a compass, कंपास कहाँ रखेंगे? ये जो आर्क R2 के थोड़ा नीचे जो मेरा कट हुआ है आर्क, वहां पे कंपास रखेंगे and we'll take the distance till the dotted line. जहां पे ये आर्क ने dotted line को कट किया है, we'll take the distance till that. तो इतना डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे. Without changing this distance, we'll keep the compass on the new arc जो नीचे है, यहाँ पे compass रखेंगे and we'll cut the arc. Now join these two points, R4 and the arc. तुम्हारे आंखों को ये दोनों डॉटेड लाइन पैरेलल दिखनी चाहिए. दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस. तो R4 से ये बेस पे जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट होगी, दैट इज माय रिक्वायर्ड पॉइंट T. ये आ गया मेरा पॉइंट T. यहां द प्रोसीजर दैट वी हैव रिपीटेड हियर, वी विल रिपीट द सेम विद द PQ लाइन के लिए पैरेलल लाइन बनाने के लिए. क्या करेंगे? फिर से सुनो. We'll keep the compass on Q, take adequate distance and cut that angle like this. Without changing that distance in the compass, keep the compass on point T and make the same arc. Now what you have to do? यहाँ पे जहां बेस पे आर्क ने कट किया है वहां पे कंपास रखो. ये हियर, यहाँ पे जहां पे मैंने क्रॉस बनाया है वहां पे कंपास रखो. टेक डिस्टेंस टिल द आर्क कट्स लाइन PQ. जो PQ को कट किया है वहां तक डिस्टेंस लो. विदाउट चेंजिंग दैट डिस्टेंस, कीप द कंपास ऑन दिस क्रॉस एंड कट द सेम आर्क. नाउ जॉइन दैट आर्क एंड पॉइंट T. So the line will look like this. This is my point L. देखो, अगर आप डायग्राम विजुअलाइज करोगे, so this is PRQ, that is PQR, which may look 3 times, and this is LTR, which looks 4 times. So ratio PQ upon LT is 3/4. This is the way your construction should be. अभी मार्क्स कहाँ जा सकते हैं? अगर ये आर्क प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, then examiner will cut your marks. किधर भी नेमिंग नहीं किया है, then examiner will cut your marks. Dimensions लिखना अगर भूल गए, अभी मैंने यहाँ पे dimensions नहीं लिखे हैं, then you will lose the mark. What are the dimensions? PR is 4.8 centimeter and PQ is 4.2 centimeter. अभी आपको दोनों कंस्ट्रक्शन समझ में आ गए. एक और केस, अगर यहाँ पे रेशियो 3/2 होता, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे अगर 3/2 है, तो मेरा प्रोसीजर क्या होता? ये मैं 3 के साथ कनेक्ट करने के बाद LT सेकेंड पार्ट है, इसका मतलब मुझे समझ में आ जाता कि LTR PQR के अंदर आएगा, बिकॉज LT इज ऑन द सेकेंड पार्ट. इट्स अ कॉमन सेंस. तो PQR के अंदर LTR आएगा. इसका मतलब मैं R2 से ज्वाइन करता उसे और लाइन अंदर की तरफ आती. सो आई वुड हैव गेट दिस LTR इनसाइड दिस PQR. तो रेशो क्या है उसे ध्यान से देखो एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल. मैंने पहले 2 सम दिखाए 4.1 के आपको. नाउ यू शुड ट्राई 4.1 के अनदर 2 क्वेश्चंस. मैंने जो भी प्रोसीजर बताई है वीडियो को रिपीट करो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड.
और इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के लिए जो मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं उसको जरूर ट्राई कीजिए।